Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. Now 3:32 time here in the studio. That means it's time for the Divine Vastu Talk with Dr. Rewa Kumar, a renowned Vastu Shastra expert with over 35 years of experience when it comes to Vastu for home, for businesses. She has helped hundreds of thousands of individuals throughout the world, and she joins us on Radio Zindagi every Thursday this time between 3:30 and 4 and educates us and informs us about Vastu, the importance of Vastu, what we should know and how we should be following Vastu. And this is the show which is live on 5:40 a.m. New York, New Jersey, Connecticut, 13:10 a.m. up in Parsippany, Morris County area, 96.7 FM, Edison, Middlesex County. And we're also live on Radio Zindagi's Facebook page, which is Radio Zindagi Tri-State. So you can watch us, you can listen to us. And meantime, any question, any suggestion that you like to send, our WhatsApp number is 848-247-9911. That's 848-247-9911. You can also send in your questions on our Facebook page. With that note, ladies and gentlemen, here is Dr. Rewa Kumar on Radio Zindagi. Namaste, Jai Mata Di. Welcome to the show, Didi. जय माता दी संजीव और हमारे सभी रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सबसे पहले ये बताइए कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए संजीव जी। और थर्सडे को वैसे ही बात ही अलग होती है। जी बिल्कुल, थर्सडे की बात अलग होती है और इसमें भी सावन महीना का थर्सडे हो तो बात अच्छी भी बहुत अच्छी हो जाती है। एंड ये जो सावन महीना है, यूजुअली फॉल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त, एंड अगस्त में काफी सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं। सो अगस्त का जो महीना होता है, इट्स कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ऑस्पिशियस मंथ्स ऑफ द ईयर, एंड देन ये सावन का महीना चल रहा है। स्पीकिंग ऑफ ऑस्पिशियस एंड फेस्टिवल एंड सावन का महीना, दिस कमिंग मंडे August 3rd इज द राखी बंधन। हमारे कल्चर में एक ये वो इतना पवित्र और प्यारा रिश्ता होता है भाई और बहन का दीदी, कि जिसमें बहन भाई को राखी बांधती है। एंड टू रेसिप्रोकेट दैट, भाई जो होता है वो दिवाली के बाद वाला जो दिन होता है, भाई दूज के दिन, तो भाई बहन को अपने घर बुलाते हैं। मतलब भाई और बहन दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और रेसिप्रोकेट करते हैं। एंड दैट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हमारे शास्त्रों में जो बताई गई है भाई बहन की। तो राखी बंधन तो पता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहन भाई को राखी बांधती है और बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है कि ईश्वर उसको हमेशा सुखी रखे, सही रखे, तबीयत ठीक रखे, सब कुछ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो रिलेशनशिप्स होती है ना, तो आज के हमारे इस शो में रिलेशनशिप को लेके बात करते हैं, बट नॉट ओनली लिमिटेड टू भाई बहन, रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली मेंबर्स, रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रेंड्स, रिलेशनशिप बिटवीन कोलीग्स, आपके साथ जो ऑफिस में काम करते हैं। रिलेशनशिप पॉजिटिव होना और एक कोर्डियल रिलेशनशिप होना आपके जीवन में बहुत जरूरी होता है। तो आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज के हिसाब से हम सब ये जानना चाहेंगे कि रिलेशनशिप के ऊपर वास्तु को कैसे जुड़ा जाता है। जी संजीव जी, बिल्कुल, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं हमेशा रेडियो जिंदगी के साथ जुड़ी रहती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं हर वीक अपने व्यूअर्स, अपने लिसनर्स के लिए एक बहुत पसंद करती हूँ, बहुत अच्छा महसूस करती हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस या अपनी नॉलेज उनको शेयर करती हूँ, जो भी मेरी जिंदगी का तजुर्बा है।
सबसे पहले तो संजीव ऐसा होता है कि सावन का मंथ फुल मून टू फुल मून होता है। हमारे इंडिया के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो कुछ लोग जैसे फुल मून पूर्णमासी को स्टार्ट हुआ था लास्ट मंथ को जुलाई में, तो अगस्त को 3rd को कंप्लीट हो रहा है। कैलिफोर्निया में अगस्त 2nd कर रहे हैं। अदरवाइज इंडिया के हिसाब से या दूसरे डेट्स के देखें तो अगस्त 3rd भी आ रहा है। तो उसके मुताबिक में देखते हैं तो उस दिन भी फुल मून है सावन का, जिसको हम बोलते हैं सावन पूर्णिमा, और उसी दिन रक्षाबंधन होता है। और इसी तरह इंडिया के कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो अमावस टू अमावस में ही इसको सावन के मंथ को सेलिब्रेट करते हैं। तो 4 वीक्स हमने ऑलरेडी इसका जो सावन का पूजा चलती है मंडे की, वो हमने करी ही है। और अब आ रहा है अगस्त 3rd रक्षाबंधन। एंड इट इज वेरी ट्रू कि रक्षाबंधन एक ऐसा फेस्टिवल है कि जो बहुत ही एक बहन भाई के क्लोज, एक उस बॉन्डिंग को और भी स्ट्रॉन्ग करता है। वैसे भी अगर आप देखें, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है बहन भाई का, बचपन में ही ये सब चीजों में एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, वेयर दे बोथ कैन शेयर ईच एंड एवरीथिंग। हर तरह की खुशी है, गमी है, डांट है, हर तरह को उनको एक लगता है कि दोनों को किसी गलती पे कोई ना कोई दूसरा प्रोटेक्ट करेगा। दे ऑलवेज हैव दिस फीलिंग कि मम्मी की डांट से, पापा की डांट से, दोनों को एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, शिकायत भी करेंगे, प्रोटेक्ट भी करते हैं। वो एक हमारा बचपन रहा है। लेकिन मैं कई बार सोचती हूँ कि बचपन में यही रिश्ता इतना सुंदर होता है, क्या कारण होता है कि बड़े होकर इन रिश्तों में दूरी क्यों आ जाती है? एक होता है कि डिस्टेंस, आप अमेरिका में हैं, आपके ब्रदर इंडिया में है या आपकी सिस्टर इंडिया में है, वो समथिंग इज अ डिफरेंट। दूरी एक डिस्टेंस रहने से एक दिल के अंदर में अगर वो डिस्टेंस आता है तो वो अच्छा नहीं है। क्या रीजन है जो हमारा सिबलिंग्स का, कि कहाँ वो एक दूसरे के बिना, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के बिना नहीं रहते, लेकिन आज एक ऐसा वक्त आ जाता है कि वो दोनों अलग होते हैं और उसमें ब्लेम क्या कर देते हैं, एक दूसरे की वाइफ्स को या एक दूसरे के हस्बैंड को, एक दूसरे की फैमिली को। दैट इज टोटली रॉन्ग। हाँ, मैं वास्तु प्रिंसिपल्स के हिसाब से हमेशा की तरह आज भी जरूर बात करूंगी कि जब कभी घर के अंदर वास्तु डिफेक्ट होता है या हमारे वर्क प्लेस पे भी होता है तो वहां पे प्रॉब्लम्स आती ही हैं। सिर्फ सिस्टर ब्रदर के रिलेशन को ही नहीं संजीव, चाहे वो पर्सनल रिलेशन ले लीजिए, आप अपने सबॉर्डिनेट्स को ले लीजिए, अपने फ्रेंड्स को ले लीजिए, आप अपने कुलीग्स को ले लीजिए, क्योंकि लाइफ में बहुत जरूरी है एक अच्छा रिलेशन होना। यहाँ तक कि आप अपने नेबर्स का ही देख लीजिए। आप अगर रह रहे हैं और अगर आपका नेबर से कोई बातचीत नहीं है, खुदा नहीं खास्ता अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है और नेबर्स आपके पास नहीं, अगर कोई हेल्प करने आएगा तो आप क्या करेंगे? कहना ये चाहती हूँ कि एक हार्मनी, एक रिलेशन में हार्मनी लानी बहुत जरूरी है। ये बात सही है कि रक्षाबंधन है, बहुत खूबसूरत त्योहार है। इसी रक्षाबंधन को अगर सिर्फ सिस्टर ब्रदर में ना लेके मैं हर चीज में ही देखूं कि हमारे को एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे को स्ट्रेस में से बाहर लेकर आना, एक दूसरे के नजदीक होना। क्योंकि कई बार इंसान हालातों से इतना जूझ जाता है, तंग आ जाता है कि उसको जरूरत होती है अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए, और तब उसको याद आती है, सिस्टर ब्रदर ही नहीं लीजिए संजीव, आप सबकी, आज आपका और मेरा ही रिलेशन देख लेते हैं। हम लोग पिछले 10 साल से हैं, आप मुझे दीदी बुलाते हो, मैं आपको संजीव बुलाती हूँ, लेकिन उस दीदी में इतनी रेस्पेक्ट है, इतनी इज्जत है, इतना एक कंसर्न है, इतना प्यार है, इट मैटर्स लॉट। तो अगर मुझे कोई तकलीफ है तो मेरे ब्रदर बहुत डिस्टेंस पे है, एक नहीं है, लेकिन मुझे उसी समय याद आता है कि संजीव मेरा भाई है, क्योंकि उस दीदी, उस सिस्टर, उस रिस्पेक्ट में एक बहुत ही एक कंसर्न छिपा हुआ है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू वास्तु, जहां आप देखते हैं कि आपके सिबलिंग्स के साथ में हम एक एक रिश्ते को लेकर आज चल रहे हैं, आज अगर सिबलिंग्स की, सिस्टर ब्रदर्स की दूरी है और आप मिस कर रहे हैं और नहीं बात करने आ रहे एक दूसरे से, तो सबसे पहले तो ईगो को बाहर निकाल दीजिए, ईगो को गो कर दीजिए, ई को भूल जाइए और गो कर दीजिए। जैसे ही ईगो में से ई को कटेंगे, गो कर देंगे, तो आप कम को वापस, अपना सब कुछ वापस ले आएंगे। उसके लिए आपको देखना है अपने घर का नॉर्थ वेस्ट, बिकॉज
सॉरी, नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विथ एयर एलिमेंट। संजीव, एयर एलिमेंट होने से क्या होता है कि वो हमारे को सोशल सर्कल, हमारे सिबलिंग्स, उन डायरेक्शंस के साथ जुड़ा है। अलोंग विद दैट, एयर एलिमेंट का जो प्लैनेट है वो है मून प्लैनेट। मून क्या है? चंद्रमा। मतलब कि आपके दिमाग से जुड़ी, आपके इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो जहां अगर आप सोचते हैं कि आप अपने सिस्टर ब्रदर से अलग हैं, या जहां पे आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और इस खूबसूरत दिन का इंतजार कर रहे हैं, तो ईगो को में से ई को हटाकर इमीडिएटली पिक अ फोन, आप उन्हें कॉल कीजिए। और उससे पहले क्या कीजिए? कॉल करने से पहले नॉर्थ वेस्ट को इनहेंस करें। बहुत सिंपल सी टिप दे रही हूँ नॉर्थ वेस्ट को इनहेंस करने के लिए। जहां नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपके घर का डार्क एरिया है, वहां पर व्हाइट कलर का नाइट बल्ब लगा दीजिए। और कोशिश कीजिए कि अगर वहां पे रेड या ब्लैक कलर कहीं ज्यादा इनहेंस कर रहा है, तो वहां पे व्हाइट कलर को लेकर आइए, ताकि अंधेरे में से जो मून की एनर्जी है वो आए और आपके इमोशंस को स्टेबल कर सके। It is really remarkable remedy which I am giving to my all viewers and listeners. It really works just like a bullet. इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे ही व्हाइट लाइट 24/7 आप 24 घंटे ऑन रखिए और देखिए कि आपको कैसे अपने इमोशंस के साथ में आप स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। प्लस ये भी कोशिश करना है कि जहां पर रिलेशंस में होता है कि अगर आप घर में रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स के साथ में सही नहीं मिल रहा, बहन भाई, बच्चे स्कूल जाते हैं, टीनेजर्स हैं, बट स्टिल दे आर हैविंग इश्यूज, स्टिल दे आर हैविंग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से पेरेंट्स बहुत अपसेट हैं। तो तब आप ये देखिए कि कहीं आपके एंट्रेंस डोर से इमीडिएटली सामने जहां पे बच्चों का रूम है या जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस है, उनके रूम से सीधा कॉरिडोर नजर तो नहीं आ रहा। अगर इमीडिएटली आपको अपनी बेडरूम के, बच्चों के बेडरूम से कॉरिडोर सामने नजर आता है, तो वहां की एनर्जी ड्रेन कर जाती है और बच्चे बहुत जिद्दी होके आपस में बहुत झगड़ा करते हैं। तो दैट हैज टू बी फोकस। जो नेक्स्ट मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए जा रही हूँ संजीव, हो सकता है हमारे व्यूअर्स, हमारे लिसनर्स इसको बहुत लाइट लेके जाएं, लेकिन इसको बिल्कुल आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले दीदी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, I'm sorry। इससे पहले मैं हमारे लिसनर्स जो है, रेडियो जिंदगी के लिसनर्स और जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, in case if they have just tuned in, you are actually listening to the Divine Vastu Talk with Dr. Reva Kumar of World of Divine Vastu right now on Radio Zindagi. It's our Thursday's regular show between 3:30 and 4, where we get tips, we get educational knowledge from Dr. Reva Kumar, who has over 35 years of experience when it comes to Vastu, and she shares all the knowledge with us and then tells us, you know, what direction that we should be careful, what we should be doing, what not. और आज जो topic है वो है relationship in light of upcoming Raksha Bandhan, which is on Monday, but relationships everywhere, you know, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, भाई बहन, भाइयों के साथ, colleagues के साथ, friends के साथ। तो आज इसको लेके बात कर रहे हैं। तो any question you have, you can contact us on a WhatsApp number 848-247-9911 or send in a note on the Radio Zindagi Facebook page, which is Radio Zindagi Tri-State. Go ahead दीदी, now इतना मैं कहना चाहता था। जी हाँ, अब ये है इम्पोर्टेंट, जहां कई बार ऐसा होता है कि बंक बेड होते हैं, बच्चे, पेरेंट्स कह देते हैं कि चलिए सिस्टर ब्रदर हैं, 2 ब्रदर्स हैं, बंक बेड लगा देंगे, एक ऊपर सो जाएगा, एक नीचे सो जाएगा। बच्चे बड़े भी हो गए हैं लेकिन फिर भी पेरेंट्स बंक बेड को यूज करते हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग। अगर बंक बेड होगा तो ऊपर की एनर्जी आपको हमेशा एक ग्रेविटेशनल, एक नेगेटिविटी देगी, और अगर नीचे वाला बच्चा सो रहा है, ऊपर से जो उसको फोर्स मिल रही है वो गलत मिलेगी। हमेशा जब भी बच्चा सो रहा है, अगर उनके पांव बेड से बाहर जा रहे हैं, कहने का ये मतलब है कि अगर बेड छोटा है और बच्चा पूरा उसमें फिट नहीं आता और स्टिल दे पीपल आर यूजिंग, वहां पर प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे, आपस में बहन भाइयों के झगड़े की, या कि बच्चे नीचे जमीन पे कई बार सो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं वी डोंट वांट टू यूज, या वाटर बेड यूज करते हैं। वहां पर भी हमेशा सिबलिंग्स की बहुत ज्यादा स्टबर्न हो जाएंगे, पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, इतनी नेगेटिविटी हो जाती है कि उसका असर कई बार पेरेंट्स के रिलेशन पे भी चला जाता है।
जी। तो कहना ये चाहती हूँ कि जस्ट अवॉइड वाटर बेड। वाटर बेड आप बच्चों को कभी भी सोने के लिए नहीं दीजिए, बंक बेड नहीं दीजिए, ना ही उनको बेड की जो लेंथ कई बार छोटी हो जाती है, बच्चे बड़े हो गए हैं, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं ठीक है, वो लोग ऐसे सिमट के सो जाते हैं, उसको जरूर अवॉइड करिए। ये है एक पर्सनल रिलेशन को लेते हुए। नेक्स्ट आ जाता है कि घर में कि क्या बात है कि आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं फादर की बेटे के साथ में नहीं है या मदर की डॉटर के साथ में नहीं है। पैदा किए बच्चे बहुत अच्छे हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी घर में आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं। वहां पर आ जाता है अगर हमारा वाटर एंड फायर एक दूसरे के साथ हो। वाटर फायर एक दूसरे के साथ में मतलब कि जहां पर अगर आपका स्टोव है, कुकिंग बर्नर है, बिल्कुल उसी स्टेट पे ही बिल्कुल नेक्स्ट टू दैट अगर वाटर सिंक होगा तो वहां पर प्रॉब्लम्स आएंगी, आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके अपने यहाँ देखिए, अगर आपके इन लॉज भी रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो भी बहुत आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं और उसमें हार्मनी नहीं रहती रिलेशन में। सो वी हैव टू सेटल इट कि कहीं पे भी अगर वाटर और फायर साथ है, हम उसको तोड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। बहुत सिंपल टिप मैं देना चाहती हूँ। आप एक क्रिस्टल, फैसिनेटेड व्हाइट क्रिस्टल को अगर आप हैंग कर देते हैं या उन दोनों के बीच में कहीं पे आप ग्रीन कलर का बैम्बू शूट्स के जिसके 3 शूट्स हो, यू जस्ट टाई इट विथ रेड रिबन, पुट 1 कॉपर पैनी इन दैट एंड जस्ट कीप बिटवीन दैट, कि ताकि वाटर और फायर को हम लोग डिवाइड कर सके। वी हैव टू डिवाइड दैट ताकि रिलेशन में हार्मनी रहे। तो आपने जो अभी बताया ग्रीन कलर का, आपने बोला ग्रीन कलर का कोई 3 शेड वाला टेप लगा दो। ट्री, ग्रीन कलर का ट्री जिसको अच्छा। बोलते हैं हम लोग बैम्बू शूट्स होते हैं, चाइनीज ट्री जी 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 जी, यू जस्ट टाई इट विथ रेड रिबन, या मनी प्लांट भी उसके बीच में रख सकते हैं। मतलब आपको वाटर और फायर को डिवाइड करना है। अच्छा, वेरी गुड। यू हैव टू डिवाइड वाटर एंड फायर। बिकॉज यहाँ के काफी घरों में ये चीज दिखाई दे जाती है कि जो स्टव जो होता है, ओवन जो होता है और सिंक जो होती है किचन की, वो दोनों एक लाइन में होती है, एक लाइन में होती है। तो उसको हमने डिवाइड करना है। उसको डिवाइड करने से क्या है कि आप अपने घर में एक हार्मनी लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आप कुलीग्स के साथ में, हमारे को बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके कुलीग्स हैं, लेकिन आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं बैक स्टैबिंग चल रही है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड और दे पीपल आर जेलस फॉर दैट। उसका कॉज है कि अगर आपका सिटिंग अरेंजमेंट गलत है, तो सिटिंग अरेंजमेंट गलत, बैक टू बैक कभी भी नहीं बैठिए, यानी कि उनकी पीठ और आपकी पीठ एक दूसरे की तरफ नहीं होनी चाहिए। दे शुड फॉलो योर बैक और यू कैन फॉलो देयर बैक, लेकिन पीठ से पीठ नहीं हो, उससे बहुत ज्यादा स्ट्रेनिंग होती है। दैट वी हैव टू सी। गुड पॉइंट। यस यस, अलोंग विद दैट संजीव, हमेशा कि चाहे वो बच्चे हैं, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूं, कोई भी है, हमारी जो चेयर है कि जैसे जैसे लेकर स्टूल के ऊपर में नहीं बैठिए, आपके पीछे चेयर होनी चाहिए। मींस कि आपके पीछे स्टेबिलिटी है, आपकी बैक स्टेबल है। उससे क्या होता है कि आप ग्रो भी करते हैं और सामने वाले को प्रॉपरली आप समझा भी सकते हैं। अब एम्प्लॉयज के रिलेशन को ही लेके मैं बताना चाहती हूँ। अगर आप देखते हैं कि आप बॉस हैं, आप सीईओ हैं एक बहुत अच्छी कंपनी के, आप एक ऑनर है अच्छे रेडियो जिंदगी के, एंड स्टिल यू आर हैविंग इश्यूज विथ योर एम्प्लॉयज, तो आप हमेशा, आपकी चेयर बड़ी होनी चाहिए, आपके एम्प्लॉयज की चेयर की हाइट कम होनी चाहिए, ताकि वो आपकी बात को समझे। जहां पर एम्प्लॉयर, अगर आपके देखते हैं कि चेयर बड़ी हो गई है, कभी आपने ये देखा है कि इवन अमेरिका क्या, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बड़ी बड़ी कंपनीज में भी अगर कभी भी उनकी एम्प्लॉयज आते हैं, दे नेवर मेक देयर एम्प्लॉयज टू स्टैंड, दे ऑलवेज से कम एंड हैव अ सीट। What's the reason? Because if employer is sitting on chair, or the CEO is sitting on a chair, and employee is standing before him, वो एक एनर्जी बैलेंस नहीं जाएगी, क्योंकि वो खड़े हैं, उनकी हाइट में ज्यादा है, तो नेचुरली है उनकी डिमांड भी डोमिनेटिंग हो जाएगी। So what we have to do, we have to always ask our employee, come and sit over there, let him sit। तो असमें क्या है कि आपकी चेयर की हाइट ज्यादा है ताकि आप अपनी बात का प्रभाव डाल सकें।
जी आप अपनी बात को समझा सके और वो भी आपकी बात को बहुत अच्छा समझेंगे. दे विल ट्राई एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के रिलेशन को नॉर्मल करने के लिए, बहुत खूबसूरत करने के लिए. दिस इज द बेस्ट वे. Along with that, if you think that your employer is very stubborn or your employee is very stubborn, तो उसकी भी directions हैं. Always avoid the corner of your table while sitting. Means कि एक टेबल होता है, उस टेबल का एक कॉर्नर है, वो कभी आपके स्टमक की तरफ, आपके बॉडी के सेंटर पॉइंट की तरफ कभी भी पॉइंट नहीं करना चाहिए. अगर वो पॉइंट करता है तो भी आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज कभी भी एक अच्छी स्मूथ, एक कह सकते हैं कि शांत, एक कूल डिस्कशन पे खत्म नहीं करेंगे अपनी मीटिंग को. दैट विल एंड अप विद एन हॉट टेम्परामेंट. नेक्स्ट जो आज मैं एक संजीव और मैं बताना चाहती हूँ घर के लिए, कि जहां पे हमारे को सिस्टर ब्रदर्स या दोनों ब्रदर्स या 3 ब्रदर्स या वॉट एवर हुएवर इज स्टेइंग एट होम, तो आप देखें अगर आपके बेड का जो हेड साइड होता है, देयर हैज टू बी अ सॉलिड हेड साइड. हेड साइड की तरफ में कभी भी मिरर नहीं दें, ना ही मिरर दें, और ना ही कभी ऐसा हो कि हेड साइड नहीं हो. कई बार पेरेंट्स कह देते हैं कि ठीक है मैंने तो वैसे ही बेड बना दिया क्योंकि पीछे वॉल है. जी नहीं, उस वॉल के साथ में भी आपको सॉलिड एक हेड साइड चाहिए ही चाहिए, ताकि बच्चों को एक हार्मनी, पीस ऑफ माइंड मिले, पॉजिटिविटी मिले. जब उनके माइंड में पीस ऑफ माइंड होगा, जब वो पॉजिटिव होंगे, तो नेचुरली हमारे घर का, हमारी हर जगह का रिलेशन भी बहुत अच्छा होगा और बहुत ही हार्मोनाइज होगा. जी, इंटरेस्टिंग. दीदी, ये जो बेड की जो हेड की बात करी, वो पेरेंट्स के लिए भी तो होना चाहिए ना, मतलब बच्चों के लिए. बिल्कुल, ऑफ कोर्स सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए है, लेकिन मिरर नहीं है. कई बार मैं जाती हूँ, जब मैं विजिट करती हूँ, देखती हूँ कि बेड के हेड साइड की तरफ मिरर है. वो आपको इतनी प्रॉब्लम्स देगा कि आपको मेंटली तो डिस्टर्ब रहेंगे, इसके साथ में कोई ना कोई आप ऐसी अजीब से नेगेटिविटी लेकर आएंगे कि जिसको हम लोग दोबारा भरपाई भी नहीं कर पाते हैं. So always try to keep yourself calm and cool. Always try to keep, yes, we can do it. और उसको प्रॉपर तरीके से कीजिए. खास तौर पे सोशल सर्कल के लिए भी मैं नॉर्थ वेस्ट को ही रेकमेंड करती हूँ. आपके फ्रेंड्स, आप कहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स के साथ में बहुत अच्छा किया, वो बात अलग है कि अगर हमारे घर का एंट्रेंस साउथ ईस्ट की तरफ है, तो वो फायर एनर्जी को लेकर आता है कि घर में जो भी आएगा आपसे खा पी के जाएंगे, बहुत अच्छा जाएंगे, लेकिन बाहर जाते ही then the people will talk against you because that is due to साउथ ईस्ट. लेकिन अगर आपका घर साउथ ईस्ट फेसिंग नहीं है, उसके बाद में भी आपको सोशल सर्कल से बहुत नेगेटिविटी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में डिफेक्ट है. वहां नॉर्थ वेस्ट में हमारे को प्रॉब्लम आ रही है. वहां से हमारे, चाहे हमारे एम्प्लॉयज के साथ में भी मैं उसमें ले सकती हूँ, एम्प्लॉयर्स के साथ भी ले सकती हूँ, सोशल सर्कल के लिए भी ले सकती हूँ, कि फ्रेंड सर्कल के लिए भी मैं उस डायरेक्शन को ले सकती हूँ. दैट इज नॉर्थ वेस्ट. कि हम इतना करने के बाद में भी हमारे को अपने फ्रेंड्स के साथ में एक पॉजिटिविटी नहीं मिलती. टू रेक्टिफाई दैट, व्हाट आप नॉर्थ वेस्ट को जितना भी व्हाइट कलर, जस्ट लाइक व्हाइट कुशंस ले लीजिए, व्हाइट कुछ भी तो वहां पे इनहेंस करिए. अगर आप सोचते हैं कि आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है, तो बहुत सिंपल वे से पीकॉक फेदर्स, दैट इज द बेस्ट. अगर आप 9 नंबर के पीकॉक फेदर्स नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए और 9 नंबर के ही पीकॉक फेदर्स साउथ वेस्ट में रख दीजिए. जब 9 नंबर के दोनों तरफ में रखेंगे, नॉर्थ वेस्ट एयर एलिमेंट है और साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है. अर्थ एलिमेंट आपकी एयर एलिमेंट, आपके जो सोशल सर्कल, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, उसको स्टेबिलिटी लेकर आता है. So these are very simple tips and quite experienced, which मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. Just try to follow them. क्योंकि सिबलिंग्स का एक ऐसा रिलेशन है कि अगर वहां, ये भी होता है कि खून का रिश्ता खून का होता है, लेकिन अगर आप इस कंट्री में बैठे हैं और आपका ब्लड रिलेशन कोसों दूर है, तो जो आपसे ये रिश्ता है, चाहे वो ब्लड का नहीं है, तो आपके लिए उसकी भी इम्पोर्टेंस है. टू कीप हार्मनी, टू कीप डिवाइनिटी इन योर रिलेशन, तो उसके लिए बहुत जरूरी है आप अपने डायरेक्शंस की तरफ भी ध्यान दें.
जी बिल्कुल, डायरेक्शन की तरफ ध्यान दें। और लिसनर्स, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि रेवा जी की ये जो बात है उसकी तरफ ध्यान दें, इस बात को सोचे समझे। आज के हमारे इस डिवाइन वास्तु टॉक में रेवा जी ने हमें रिलेशनशिप के बारे में समझाया कि रिलेशनशिप जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन हाउ टू ग्रो रिलेशनशिप विद पॉजिटिविटी और उसको कैसे मेंटेन किया जाए। एंड हर एक कैटेगरी में रेवा जी ने suggestions दिए हैं, which you can always go back on the Facebook page and listen to the entire show and make a note of it. And wherever you think that you need to make that change in your house, please do it, please follow it. If you have any question, anything that you like to ask, you can contact Rivaji after the show at 510-868-3338. That's a 510-868-3338. You can also, and you should, visit her website, which is worldofdivinevastu.com. That's a worldofdivinevastu.com. दीदी, आज आपने जो रिलेशनशिप के बारे में बताया, आई एम कंप्लीटली अमेज्ड कि जिस तरह से आपने सिंपल टिप्स, सिंपल सजेशंस दिए हैं, व्हिच कैन मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस इन रिलेशनशिप्स। कोई भी रिलेशनशिप में कहीं पे भी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या तो कंफ्यूजन हो, तो ये टिप्स फॉलो करने से दूर हो जाती है। और जैसा आपने कहा कि दीज आर वेरी इफेक्टिव टिप्स, they have worked for other people and they can definitely work for anyone else. अब मैं आपसे एंड में एक टिप और लेना चाहूंगा, हाउ टू स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो जल्दी से एक टिप वो बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल, वो मैं जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि इस बार जो अगस्त 3 को जो फुल मून है उसकी एक अपनी ही इंपॉर्टेंस है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली वेयर वी वांट टू स्टेबल आवर फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज वेरी गुड फॉर प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, एवरीथिंग। मैं बहुत धीरे से स्लोली बताऊंगी, और फिर भी अगर मेरे व्यूअर्स, मेरे लिसनर्स, अगर आप सोचते हैं कि आपको नहीं समझ आ पाया, तो आप हमें शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं। वैसे तो संजीव इज परफेक्ट नाउ टू राइट डाउन एवरीथिंग, एंड आई लव इट व्हेन यू नोटिस एवरीथिंग। बहुत अच्छा लगता है। इस फुल मून को आपको क्या करना है, एक ग्रीन कलर का आप कोई भी कपड़े का सेशे ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं छोटा सा पाउच, ग्रीन कलर का। उसमें आपको क्या क्या रखना है, स्टिल वी आर हैविंग दिस, तो हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे, और आप इसको करके देखिएगा और आपको बहुत फायदा होगा टू स्टेबिलिटी फाइनेंशियल पोजीशंस। पैसे को अचानक हमारे को मिल जाना, पैसे को स्टेबल करना, रास्ते खुल जाना, ग्रो करना, अबेंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हर चीज के लिए ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये वंस अ ईयर ही होती है जब हमारे पास सावन का फुल मून आता है, तो इसलिए आपको बताना चाहती हूँ। आपको इस दिन करना है ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन ले या डार्क ग्रीन कलर, कोई भी ग्रीन कलर का आप एक सेशे ले लीजिए, पाउच ले सकते हैं। उसको लेने के बाद में उसमें आपको रखना है एक छोटा सा एमेथिस्ट। एमेथिस्ट एक छोटा सा स्टोन होता है, वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी के लिए। आप वो स्टोन रख सकते हैं, एक छोटा सा पत्थर रख सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट आपको रखना है ड्राई जिंजर। ड्राई जिंजर मतलब अदरक का पीस, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, सूखा हुआ अदरक भी रख सकते हैं। धूप बहुत अच्छी चल रही है, आप उसमें सुखा भी सकते हैं। ड्राई मिंट, मिंट जिसको बोलते हैं हम पुदीना, खाते भी हैं आप थोड़ा सा 2 पत्ती पुदीने की भी सुखा लीजिएगा, ड्राई मिंट है। नेक्स्ट आपको लेने हैं 2 क्लोव, लौंग। लौंग की जो होते हैं 2 पीसेस ऑफ लौंग, 2 लीजिए, लेकिन टूटा हुआ लौंग नहीं होना चाहिए, फूल वाला साबुत लौंग होना चाहिए। नेक्स्ट आप लेंगे 2 पीसेस ऑफ सिनेमन स्टिक। सिनेमन स्टिक जिसको हम लोग दालचीनी भी बोलते हैं, और आपके घर में आराम से अवेलेबल है, मिलेंगे। उसके बाद में हम लेंगे सी सॉल्ट, रॉक सी सॉल्ट। सी सॉल्ट का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिएगा, क्रश सी सॉल्ट मत लीजिएगा। ये सारी चीजें आपने उस सेशे में डालनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा पेनी लेना है, कॉइन लेना है, चाहे आप $1 ले सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आप लीजिए। उसके ऊपर में आपको स्विच वर्ड लिखना है 808। You have to write down switch word with blue pen, that is 808, and just make a circle. That number 808 has to be in that circle. उस सर्कल में आना है,
और उसको जिस समय आप ये लिख रहे हैं, यू हैव टू विजुअलाइज, because I want your inner desire on that time. I want your expression. I want you to should be thankful to Almighty. आपको पॉजिटिविटी में लेना है, आपको मांगना नहीं है, वो आपको दे रहे हैं, and you should be thankful to God. आपको ये विजुअलाइज करना है कि यू आर गेटिंग अबंडेंस, यू आर गेटिंग प्रॉस्पेरिटी, यू आर गेटिंग ऑल वर्क, आपका हर काम इस पैसे से हो रहा है, आपका घर बन रहा है, आपका ये बन रहा है, मतलब कि बन रहा है, वी आर गेटिंग दिस पॉजिटिव एनर्जी यू हैव टू क्रिएट इन योर माइंड। आप उस सेशे में रखिए, उस सेशे को बंद करके, अगर आप सोचती हैं लेडीज हैं, फीमेल्स हैं, अगर आप पर्स में रख सकती हैं तो दैट्स वेरी गुड। For any reason, if it is not possible for the mail कि आप वॉलेट में नहीं रख सकते, तो जहां आपका लॉकर है, जहां चेक बुक रखते हैं, जहां पैसा रखते हैं, आप वहां रख दीजिए। रखने के बाद में इसको अगले फुल मून तक बिल्कुल भूल जाइए। जब अगले साल का अगस्त का सावन का फुल मून आएगा, तब आप इसको खोलिए और उसके बाद में इसको उस रात को एनर्जाइज कीजिए। इसके साथ में एक टिप ये इसी की टिप है कि आप फुल मून को 3 अगस्त को क्या कर सकते हैं, आप इसको सेशन को खोल के किसी सिल्वर बॉल में रख के भी आप रात भर आप फुल मून की लाइट के नीचे रख सकते हैं, टू गेट पॉजिटिविटी, टू गेट पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम फुल मून, और अगले दिन उसको उठा के आप अपने पास रखिए। बहुत ही अच्छा दीदी, बहुत ही अच्छी टिप दी है, और आई लाइक इट कि भाई एक बार ये कर दो और 1 वर्ष के लिए, आने वाले दूसरे साल के लिए वहीं पे रख दो। अच्छा, घर में कहीं पे रखना हो तो कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए ये? अगर आप इसको घर के साउथ में रखिए, लेकिन उस ड्रॉ में रखिए जिसका ड्रॉ नॉर्थ की तरफ खुले, क्योंकि नॉर्थ मरकरी है, आपको पैसा देता है, साउथ आपके को स्टेबिलिटी करता है। तो अगर हम साउथ वेस्ट में ड्रॉ में रखेंगे, जिसका ड्रॉ खोलते वक्त उसका जो मुंह होना चाहिए नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, और ये 1 साल में आप देखिए कितना ग्रो करते हैं। लेकिन मेरा शेयर मत भूल जाइएगा, संजीव का शेयर मत भूलिएगा, और हमारा शेयर यही है, संजीव की तरह एक प्यारी सी मुस्कुराहट, एक प्यारी सी ईमेल कि आप ग्रो कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी नीड। दीदी, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। Listeners, you can contact Reva ji after the show at 510-868-3338. That's a 510-868-3338. worldofdivinevastu.com. That's a website. Do visit her website. Do give her a call, and you will be amazed how she will guide you, and she will, really steer you in the right direction. घर को लेके, business को लेके, give her a call. She has helped hundreds of thousands of individuals, and she is the best when it comes to वास्तु। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी राखी बंधन टू यू। ऑफ कोर्स मैं मंडे आपसे बात भी करूंगा जरूर राखी बंधन के दिन, एंड thank you so much for sharing these important tips. थैंक यू संजीव, गॉड ब्लेस यू। और हमारे सभी व्यूअर्स लिसनर्स, आप सबको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारक हो। यही दुआ करती हूँ कि आपके घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां वास करें। वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम। दीदी, आप भी हमेशा हैप्पी रहो, हेल्दी रहो, और ऐसे ही हम सबको tips देते हो। Thank you so very much. It is 3 minutes past 4 o'clock, and with that note, we come to the end of this Divine Vastu Talk Show right now on Radio Zindagi. Once again, you can catch us on the Facebook page, Radio Zindagi Tri-State. That's our Facebook page, and go through the entire things and actually share it with your loved ones also. And कहते हैं कि आप अपने लिए कुछ करोगे, अच्छा करोगे, but you should also do it for your loved ones also. So share the entire interview with your loved ones, and it's available on Radio Zindagi. Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra